My dear students, welcome to Mathological. Let us start the session. So the first question, a right triangle with sides 3 cm, 4 cm, 5 cm is rotated about the side of 3 cm to form a cone. To find the volume of the cone so formed. So there is a right angle triangle that is rotated around the side of 3 cm. So one side is 3 cm, one is 4 cm, one is 5 cm, and we are rotating it around side 3 cm. So this will be cone formed. The cone formed will have radius equal to 4 cm. Radius will be equal to 4 cm. Height of the cone will be equal to 3 cm. And lateral height, this will be slant height, that will be 5 cm. So volume will be 1 by 3 pi r square h. So 1 by 3 into pi into radius 4 square into height is equal to 3. 3 से 3 cancel out हो जाएगा, answer will be 16 pi centimeter cube. Simple question. Option C will be the answer. ठीक है, okay. Next one. Priya purchased 8% stock of company ABC issued at a premium of 20% for rupees 60,000 on 1st January 2023. Over the next year, the share price increased by 10%. Priya decided to sell the shares at the new price on 1st January 2024, यानी कि exactly एक साल के बाद में Priya sold the shares. To find the total income earned by Priya from the shares. So it is 8% stock, which implies that dividend per share is 8%, and dividend is always paid on the face value of the share, 8% of the face value, while share is traded always on the market value. ठीक है, फेस वैल्यू हुआ जिसपे कि शेयर इश्यू होगा इनिशियली इन जनरल. ठीक है, एक शेयर का प्राइस होगा फेस वैल्यू और फिर मार्केट में ट्रेडिंग होगा एज पर द मार्केट वैल्यू. फॉर एग्जांपल, मे बी द फेस वैल्यू इज इक्वल टू ₹100 एंड एज द क्वेश्चन इज सेइंग प्रीमियम ऑफ 20% पे परचेज किया है, तो प्रीमियम 20% हो गया, यानी कि मार्केट वैल्यू विल बी फेस वैल्यू प्लस 20% एक्स्ट्रा, सो ₹120. If 100 rupees का शेयर है, फेस वैल्यू 100 rupees है, मार्केट वैल्यू विल बी ₹120, बट डिविडेंड विल बी पेड ऑन द फेस वैल्यू. तो डिविडेंड ऑन दिस शेयर विल बी 8% because this is 8% stock. Dividend will be 8% of 100, तो 8 rupees will be dividend. और शेयर का मार्केट वैल्यू कुछ भी हो जाए, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे पेड होगा. ओके, सो ओवर द नेक्स्ट ईयर द शेयर प्राइस इंक्रीज्ड बाय 10%. So if face value was ₹100, market price will be या market value will be, market price नहीं, market value will be ₹120, और share price further increased by 10%, यानी कि market value after 1 year this will be equal to ₹120 plus 10%, यानी कि ₹132. And Priya decided to sell the shares at the new price. So profit कितना होगा? She will be earning 10% of the investment because of the sales. ठीक है, so profit will be equal to 10% of sales. एक सेकेंड 10% of purchase price, because उतने सही तो इंक्रीज हुआ है, तो 10% of purchase price. Because the share price has increased by 10%, so that will be 6,000 rupees plus, because इनकम हमारा प्रॉफिट प्लस डिविडेंड होगा, तो डिविडेंड वैल्यू कितना होगा? डिविडेंड विल बी इक्वल टू 8% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स. And she purchased shares of total ₹60,000, but this is including the premium of 20%, and 20% is 1 by 5. तो अगर 5 रुपीज का शेयर परचेज किया होगा, 1 रुपीज प्रीमियम एक्स्ट्रा पे किया होगा, सो 6 रुपीज टोटल इन्वेस्ट किया होगा. Isn't it so? तो share price in total, the face value of shares, this value will be equal to 5 by 6 of price invested, and 5 by 6 of 60,000. So this will become 50,000. So 8% of 50,000 will be dividend.
which will be 4,000 rupees. So profit is 6,000. 4,000 is dividend that Priya will receive. Total income will be 10,000 rupees. Total income from shares will be 10,000 rupees. क्या ये क्लियर है? ठीक है. अब नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की ऐसा हमें क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी. अदरवाइज हम ये देखते कि 60,000 रुपीज टोटल हुआ है. इफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर वॉज रुपीज 100, सो मार्केट वैल्यू विल बी 120 रुपीज. ठीक है, फेस वैल्यू 100, मार्केट वैल्यू 120, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे हमारे? नंबर ऑफ शेयर्स विल बी इक्वल टू टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड या टोटल अमाउंट ऑफ स्टॉक परचेज्ड 60,000 डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर. तो 60,000 by 120, this will be 500 shares of rupees 100 each. So dividend will be, भाई 100 रुपीज का शेयर है, पर शेयर डिविडेंड कितना होगा? 1 शेयर पे डिविडेंड होगा 8%, यानी 8 रुपीज. तो टोटल डिविडेंड आ जाएगा 8 into 500 नंबर ऑफ शेयर्स. सो 4,000 रुपीज आ जाएगा डिविडेंड. एंड देन शेयर प्राइस इंक्रीज बाई 10%. तो प्रॉफिट ड्यू टू सेल्स, this will be equal to 10% of purchase price, so 10% of 60,000, which will be 6,000 rupees. So total income will be 10,000, 4,000 plus 6,000, option C. Okay. Next question. In a market, the price of medium quality mangoes is half that of good mangoes. A shopkeeper buys 80 kg good mangoes and 40 kg medium quality mangoes from the market and then sells all these at a common price which is 10% less than the price at which he bought the good ones. तो overall profit percentage क्या होगा? Question is saying medium quality mangoes का price is half that of good quality mangoes. So price का ratio क्या आ जाएगा? 1:2 for medium and good quality. And a shopkeeper buys 80 kg good mangoes and 40 kg medium quality. 40 kg medium quality and 80 kg good quality mangoes. And then sells all these at a common price which is 10% less than price at which he bought the good ones. तो good ones से 10% less price पे sell किया है, तो 10% के लिए हम 10 या 20 मान लेते हैं, so that 10% निकालने के बाद ही वैल्यू इंटीजर ही है. So selling price क्या आ जाएगा? Selling price of mangoes is equal to 10% less than good quality mangoes, 20 minus 2, 18 rupees per kg. Okay. Selling price is 18 rupees per kg. और number of mangoes total कितना है? 120 kg है. 120 kg है, या फिर बेस्ट है कि 40-80 का भी रेशियो ले लो, तो 1:2 का रेशियो है वॉल्यूम का, या वेट का रेशियो क्या है? 1:2 का है. तो अगर 1 kg मीडियम के लिए वी हैव 2 kg गुड और टोटल हो जाएगा 3 kg. बिकॉज 40 तो कैंसिल आउट हो जाएगा नहीं वे, क्योंकि हमें प्रॉफिट का परसेंटेज चाहिए, ऐसा एग्जैक्ट प्रॉफिट की वैल्यू थोड़ी चाहिए. ठीक है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस विल बी 10 into 1 plus 20 into 2, यानी कि 10 plus 40. अगर एक्चुअल चाहिए होता तो into 40 करते, तब टोटल वैल्यू मिलता 50 into 40, 2,000 रुपीज. ठीक है, 2,000 रुपीज होता टोटल. बट हमारा काम इतने से ही चल जाएगा. 10 plus 40, 50 रुपीज फॉर 3 kg. और सेलिंग प्राइसेस 18 रुपीज, तो 80 into 3 कर दोगे एक्चुअल के लिए, 40 से मल्टीप्लाई करोगे, बट 80 into 3 कितना आ जाएगा? दिस विल बी 54 रुपीज, यानी कि कॉस्ट प्राइस इज 50 और सेलिंग प्राइस इज 54, तो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 4 रुपीज ऑन 50 रुपीज. 50 रुपीज पे 4 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है. प्रॉफिट इज 8% इन टोटल. ऑप्शन बी इज द आंसर. ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द आंसर. क्या है क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ log of 5x plus 4 on the base 64 is equal to log of x on the base 8 plus log of 3 on the base 8, तो x का वैल्यू क्या होगा? log of 5x plus 4 on the base 64, this is equal to log of x plus log of 3, दोनों का बेस सेम है, log a plus log b is equal to log of ab, this will become log of 3x on the base 8. अब बेस यहां भी सेम करना पड़ेगा. here the base is 64, here the base is 8, so 64 को we can write as 8 square. ठीक है, और log of a on the base b to the power n becomes n 1 by n times log of a on the base b. ठीक है, so 64 क्या है? 8 का स्क्वायर है, this is 8 square. log of 5x plus 4 on the base 8 square, so this becomes equal to 1 by 2 times log of 5x plus 4 on the base 8.
विच इज इक्वल टू log of 3x ऑन द बेस 8. इस 1/2 को राइट हैंड साइड में लेके चले जाओगे. सो log of 5x plus 4 on the base 8 becomes equal to 1/2 गया राइट हैंड साइड में. सो दिस बिकम्स log of 3x और बाहर आया 2 को पावर में लेके चलो 3x का होल स्क्वायर ऑन द बेस 8, या फिर 1/2 को यहाँ पे पावर में लेके चले जाते तो स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x आ जाता है बिकॉज बेस इक्वल हो जाते. ठीक है. सो 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x होल स्क्वायर. हेंस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर. 9x स्क्वायर क्वाड्रिक बन जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 0. सो 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. So 9x plus 4 into x minus 1. This is equal to 0. So x will be equal to either minus 4 by 9 or 1. But since log of x on the base 8 has to be defined, तो x हमारा क्या होना चाहिए? x must be greater than 0. Because जिस वैल्यू का हम log ले रहे हैं that should be positive value. So x cannot be negative. So x must be equal to 1. x should be equal to 1. ठीक है. इक्वल टू 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है. log of 1 0 आ जाएगा बट उससे कोई दिक्कत नहीं हो तो आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. x इक्वल टू 1 आ जाएगा. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 5x minus 3 to the power 9 is equal to a1 into x to the power 9 plus a2 into x to the power 8 plus a3 into x to the power 7 till a0. और a0 क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है बिकॉज x की पावर तो 0 है यहाँ पे, तो इट इज अ कांस्टेंट टर्म. And we are receiving this expansion by 5x minus 3 to the power 9. So constant term कब मिलेगा? When all the constant terms are multiplied. By this is 5x minus 3 to the power 9. 5x minus 3 is multiplied 9 times. 9 times. और constant term मिलेगा जबकि एक भी हमारा x का टर्म मल्टीप्लाइड ना हो. All the terms are constant terms only. और constant terms हमारे -3 and -3 टोटल 9 टर्म्स हैं एक्सपेंशन में. तो कांस्टेंट टर्म मिलेगा हमारा when -3 is multiplied 9 times. Okay. So a0 will be equal to -3 to the power 9. Now since the power is odd, so basically this is -1 to the power 9 into 3 to the power 9. और -1 to the power 9 क्योंकि पावर ऑड है तो नेगेटिव होगा. So minus of 3 to the power 9 will be the answer. And 3 to the power 4 is 81. 3 to the power 8 is 6561. 3 to the power 9 हो जाएगा हमारा 19683. सो आंसर विल बी माइनस ऑफ 19683 ऑप्शन सी. इजंट इट सो? क्या ये क्लियर है? ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Arun invested rupees 50,000 in a bank for 4 years, which offered a compound interest with 5%, 6%, 7%, 8% interest per annum for first, second, third, and fourth year respectively. Varun invested rupees 60,000 in a bank account that offered a 5% per annum simple interest for 4 years. Find the difference in the interest received by Arun and Varun in 4 years. Difference in interest received. So अरुण को कितना इंटरेस्ट मिला वो कैलकुलेट करेंगे. वरुण को कितना मिला है ये तो ईजी है. सो वरुण के केस में 60,000 रुपीज वॉज द प्रिंसिपल. Interest offered was 5% per annum, simple interest for 4 years. So 20% of 60,000 will be interest. 20% of 5% into 4, 20% of 60,000, which will be 12,000 rupees. Okay, Arun को कितना interest मिला होगा? So in case of Arun, the interest rate is 5%, 6%, 7% and 8% for 4 successive years. ठीक है. तो दो ईयर्स में कैलकुलेट कर लो. 5% और 6% का नेट इफेक्ट क्या आएगा? कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? a प्लस बी, a परसेंट और b परसेंट सक्सेसिव चेंज है. a प्लस बी प्लस ab बाई 100. तो 5 प्लस 6 प्लस 5 इंटू 6 बाई 100. सो दैट विल बी 11.30%. 7 और 8 का नेट रिजल्ट क्या आएगा? 15.56%. अब इन दोनों का नेट रिजल्ट निकाल लो. तो 11.30, क्योंकि ऑप्शंस हमारे बहुत दूर तो नहीं है. 1800, 2300, 2800 ऑलमोस्ट रफली, बिकॉज 1% इज 500 और 1% का ही फर्क है तो बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन नहीं कर सकते. 11.30 प्लस 15.56 प्लस 11.30 इंटू 15.56 डिवाइडेड बाई 100. सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 26.86%.
प्लस ये वैल्यू क्या आएगा, 15 इंटू 11 इज 165, 16 इंटू 11 आ जाएगा हमारा 176, रफली 1.76% के आसपास वैल्यू आ जाएगा, रफली 1.76% के आसपास का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, क्या है, क्लियर है? 1.76, 1.8, 1.85 के आसपास का वैल्यू आ जाएगा। कितना आएगा, 26 प्लस 1 27, 28.6% रफली। ओके, और 50,000 का निकाल रहे हैं 28.6%, तो क्या आएगा, 1% इज 500, 2% इज 1000, तो 28.6% आएगा, रफली 14,300, so 28.6%, this will be roughly 14,300 rupees. So the difference between the interest will be 2,300 rupees. Option C will be the answer. Okay, clear? Next question, 10 to the power 22 minus 1 plus 10 to the power 33 plus x is divisible by 9. Which of the following could be one of the possible values of x? Ten to the power 22 minus 1 plus 10 to the power 33 plus x, this is divisible by 9. Now 10 की कोई पावर लो तुम, 10 to the power n, if we divide by 9 तो रिमाइंडर क्या आएगा, 10 is 9 plus 1, तो 9 plus 1 to the power n divide by 9, remainder will always be equal to plus 1. But if I dividing 10 to the power n minus 1 by 9, तब रिमाइंडर क्या आएगा, क्योंकि 10 to the power n हमारा रिमाइंडर 1 दे रहा है और तुम 1 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हो, तो दिस विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाई 9. 10 to the power n minus 1 will always be divisible by 9. तो 10 to the power 22 minus 1, तो रिमाइंडर 0 देगा स्ट्रेट अवे, दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल. तो 10 to the power 33 plus 1, ये कितना रिमाइंडर देगा, 10 to the power 33 हमें रिमाइंडर देगा 1, बिकॉज 10 की कोई पावर हो, रिमाइंडर हमेशा बनाएगा. सो x प्लस 1 को जब हम 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ रहा है हमारा इक्वल टू 0, बिकॉज दिस इज डिविजिबल बाय 9. बाकी पोर्शन तो वैसे ही 0 हो गया. ठीक है, तो x प्लस 1 शुड बी डिविजिबल बाय 9. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? देखो, व्हाट आई सेड इज एनी पावर ऑफ 10 is always giving remainder equal to 1 when we are dividing by 9. So 10 to the power n divided by 9 will always give us remainder 1. 10 to the power n minus 1 divided by 9 will always be giving remainder equal to 0, because 10 to the power n minus 1 is always divisible by 9. Always divisible by 9. ठीक है, ओके. सो 10 to the power 22 minus 1 तो divisible by 9 है, तो उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो हमेशा divisible by 9 है, वैल्यू क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता. अब बचता है 10 to the power 33 plus x. 10 to the power 33 will give us remainder equal to 1, और x हमारा रिमाइंडर x देगा या उससे छोटा रिमाइंडर देगा, बट x को भी मान लेंगे चलेगा. तो x plus 1 is divisible by 9, and if this is divisible by 9, so क्या वैल्यू हो सकता है, x can be equal to 8 हो सकता है. ठीक है, -1 ही पॉसिबल था, बट क्योंकि -1 ऐसा तो लिखा है कि x पॉजिटिव भी होना, -1 भी होना पॉसिबल था, -1 हो सकता था, 8 हो सकता है, और इट कुड बी 17 बिकॉज 17 प्लस 1 इज 18, और इट कुड बी 26 प्लस 1 27, 35 एंड सो ऑन. सो कोई भी एक वैल्यू ऑप्शन में गिवन होगी. ऑप्शन में 17 गिवन है, 17 विल बी द आंसर. ओके, next question, on a semicircle with diameter AD, chord BC is parallel to the diameter. Further, each of the chords AB and CD has length 2 while AD has length 8. So what is the length of BC? Semicircle है और diameter है AD of semicircle, diameter is AD. Let us say O is the center. Chord BC is parallel to the diameter. So BC and AD are parallel. Further, each of the chords AB and CD has length equal to 2. AB is equal to 2, CD is also equal to 2. And AD has length equal to 8. So if length of AD is equal to 8, so radius of the circle will be equal to 4. We need to find out length of BC. What is the length of BC? Now this is a trapezium. ABCD is a trapezium. And this is also semicircle. सेमीसर्कल है, जब भी कभी क्वेश्चन में सेमीसर्कल गिवन हो, ऑलवेज लुक फॉर अ 90 डिग्री एंगल, बिकॉज एंगल मेड इन सेमीसर्कल इज ऑलवेज अ 90 डिग्री. ठीक है, सो कनेक्ट बी एंड डी.
ठीक है, बीडी को कनेक्ट कर दिया हमने. सो नाउ लुक इन ट्रायंगल एबीडी. ट्रायंगल एबीडी में एंगल एबीडी विल बी 90 डिग्री एंगल. इजंट इट सो? ठीक है, अब हमें चाहिए लेंथ ऑफ बीसी. तो बी से ड्रॉप करो एक परपेंडिकुलर. सिमिलरली सी से ड्रॉप कर दो एक परपेंडिकुलर. नाउ सिंस AB is 2, CD is also equal to 2, so these lengths, let us say this is P and this is Q. So AP will be equal to QD by symmetry. By symmetry. ठीक है, इससे ज्यादा सिमेट्री से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर ज्योमेट्री में सिमेट्री समझ लो तो चीजें आसान होती है. AP will be equal to QD. तो किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो. ऑलरेडी हमने बीडी को कनेक्ट किया, तो AP की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि व्हाट विल बी लेंथ ऑफ AP. नाउ ऑब्जर्व दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल ABP. ठीक है, तो या तो तुम बीपी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. हमें AB की वैल्यू पता है, AB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 8. तो इन ट्रायंगल ABD क्या BD निकल आएगा? जला ही ले, BD निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? निकल आएगा, बिकॉज BD इज परपेंडिकुलर. ठीक है, BD की लेंथ क्या आ जाएगा? BD विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर. सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 64 माइनस 4 square root of 60, that will be 2 root 15. So BD will be equal to 2 root 15. अब तुम BP निकाल सकते हो वैल्यू. BP की वैल्यू निकाल सकते हो या डायरेक्टली AP निकाल सकते हो. ठीक है, या तो BP की वैल्यू निकालो या फिर डायरेक्टली AP की वैल्यू निकाल लो. अगर डायरेक्टली वैल्यू निकाल लोगे तो बेस्ट है, टाइम तुम्हारा बचेगा. अदरवाइज पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें लंबा मेथड बताया तो फिर डायरेक्टली बताऊंगा कि AP कैसे कैलकुलेट करोगे डायरेक्टली. प्रॉपर्टी अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अच्छे से पढ़ी होंगी तो इजीली यूज कर लोगे प्रॉपर्टी. ठीक है, BP कैसे निकालोगे अब तुम? बिकॉज वी नो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD can be written as equal to 1 by 2 into AB into BD, base into height, AB into BD, or this can also be written as 1 by 2 into AD into BP, base into height. तो यहां से हमारा BP की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. BP will be equal to AB into BD by AD. तो BP will be equal to AB into BD by AD, और AB हमारा है equal to 2, BD हमारा equal to 2 root 15, AD हमारा equal to 8. So this will be root 15 by 2. BP will be root 15 by 2. अब तुम निकालोगे क्या? AP, क्योंकि जैसे ही AP निकालोगे तो तुम्हें PQ मिल जाएगा, बिकॉज PQ इज इक्वल टू BC. BC इज इक्वल टू PQ. सारा जद्दोजहद इसलिए तो कर रहे हैं. ठीक है, सो AP की वैल्यू क्या आएगा? नाउ लुक इन ट्रायंगल APB. ट्रायंगल APB में AB इज हाइपोटेन्यूज और AP और PB परपेंडिकुलर है एक दूसरे के. ठीक है, सो AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, and hence AP square will be equal to AB square minus BP square. So AP will be equal to square root of AB square, which is 2 square, which is 4, minus BP square. BP square आ जाएगा 15 by 4. 4 minus 15 by 4. So this will be square root of 1 by 4 and hence equal to 1 by 2. So AP is 0.5. AP is 0.5. QD will also be 0.5. तो PQ आ जाएगा हमारा 8 minus 2 into 0.5, which is equal to 7 centimeter. Option B will be the answer. Option B आंसर हो जाएगा. Is that clear? ठीक है, ओके. बट क्या इतना एफर्ट करने की जरूरत है इस क्वेश्चन में? क्या एक्चुअल में इतना एफर्ट करने की जरूरत थी? देखो, इफ वी हैव ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, and we are dropping a perpendicular from B on hypotenuse AC. Let us say this point is P. ठीक है, okay. So in that case, there is a property. Since the three right angle triangles, triangle ABC, triangle BPC, and triangle APB, these triangles are similar triangles. So three similar triangles हैं. तो by using that property, we can conclude that CP, this is equal to BC square upon AC. CP is equal to BC square upon AC. ठीक है, similarly AP is equal to AB square upon AC.
ठीक है, सी पी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी एंड ए पी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी। अब ट्रायंगल्स को सिमिलर कर लोगे तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो बाय द सेम प्रॉपर्टी वी हैड आइडेंटिफाइड बी डी तो हमने जला ली थी, क्या वैल्यू आया था 2√15 एंड ए बी, सीरियसली मत लेना इन सब बातों को, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 2 और ए डी इज इक्वल टू 8। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू 8, ए बी इज इक्वल टू और बी डी इज इक्वल टू √15। अब हमें क्या चाहिए, वी नीड वैल्यू ए पी बिकॉज बी पी इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ए पी की वैल्यू क्या आ जाएगा, ए पी विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए डी। ए पी विल बी ए बी स्क्वायर अपॉन ए डी विच विल बी 2 स्क्वायर बाई 8, 4 by 8 which is 1/2, यानी कि AP is equal to 0.5. Similarly, QD will also be 0.5 और hence our value of PQ or BC will be equal to 7. ठीक है, clear? Next question. A bookstore offered a 25% discount on the marked price of all books. Additionally, during the weekend, an extra 15% discount is given on the already discounted price. तो 25% का डिस्काउंट बुक स्टोर ऑफर करता है, एडिशनली ऑफर करता है वीकेंड पे 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट टू परचेज अ बुक। इफ अ बुक्स मार्क प्राइस इज ₹800 एंड द स्टोर स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द सेलिंग द बुक ड्यूरिंग अ वीकेंड, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक क्या होगा? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ₹800 इज द मार्क प्राइस, देयर इज अ डिस्काउंट 25%, डिस्काउंट 25% का, यानी 1/4 का डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस ऑन एनी जनरल डे इज 3/4 ऑफ ₹800। एडिशनल डिस्काउंट 15% है, वीकेंड पे 15% इज 3/20, 20 पे 3 का डिस्काउंट है, यानी कि रिमेनिंग प्राइस क्या बचेगा 17/20। So this will be selling price of the book on weekend. And question is also saying that there is a profit of 20%. 20% यानी कि 1/5 का प्रॉफिट है. This will be equal to 6/5 times the cost price of the book. इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दो. ठीक है, सो क्या बचेगा हमारा, 4 से यहाँ पे आया 200, 3 से बचा 2, 2 से बचा 100, 5 से बचा 4, सो 100 इंटू 17/4 यानी 17 इंटू 25, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 17 इंटू 25, सो दैट विल बी 250 प्लस 175, 425 रुपीज. ऑप्शन सी. ठीक है, क्लियर है. Next question. Two trains A and B start from towns X and Y which are 450 kilometers apart towards each other on parallel tracks. Train A starts at 8 a.m. with a speed of 70 km per hour and train B starts at 9 a.m. with a speed of 90 km per hour. At what time will the two trains meet? So they are starting 450 kilometers away. Train A from station X and train B from station Y. Speed of train A is 70. Speed of train B is 90. But they are starting at different times. Train A is starting at 8 a.m. while train B will be starting at 9 a.m. 1 hour later. तो पहले हम 1 hour चला लेते हैं ट्रेन ए को. क्या सिचुएशन बनेगा? आफ्टर 1 hour at 9 a.m. कहाँ पे होगी ट्रेन ए? At 9 a.m. ट्रेन ए will be 70 kilometers away because 70 kilometer डिस्टेंस तो कवर कर लेगी. So the remaining distance will be 450 minus 70, which is 380 kilometers. And now train B will also start. So train A is moving towards train B at a speed of 70 and train B is moving towards train A at the speed of 90. So relative speed आ जाएगा हमारा 70 plus 90. Distance बचा है 380 kilometers. Time taken will be equal to 380 divided by relative speed, which is 70 plus 90. So 380 divided by 160, 38 by 16, which is equal to 19 upon 8. So this will be 2 and 3 by 8 hours. 2 and 3 by 8 hours. 1 by 8 is 7.5 minutes. 3 by 8 हो जाएगा 22.5 minutes. तो 2 hours 22.5 minutes के बाद में they will be meeting. But we will be calculating this time 2 hours 22.5 minutes after 9 a.m. So 9 plus 2, 11 hours 22 minutes 30 seconds should be the answer. Option D will be the answer. D will be the answer. Clear है? ठीक है.
Next question. A project is to be completed by three friends, Arun, Bhavya and Chetan. They follow this work pattern. Days 1 and 2 पे Arun and Bhavya are working together. Days 3 and 4 पे all three are working together. Days 5 and 7, 5 to 7, 5, 6, 7 यानी कि 3 days के लिए consecutively Bhavya and Chetan are working together. And days 8 to 10 Arun and Chetan are working together. Okay. The cycle repeats every 10 days. Arun, Bhavya and Chetan can complete the project alone in 30, 40 and 60 days respectively, on which day they will complete the project under these conditions. So Arun can complete the work in 30 days, Bhavya can complete in 40 days and Chetan can complete it in 60 days. एलसीएम क्या ले सकते हैं? एलसीएम आ जाएगा 120. सो वर्क हमारा टोटल हो गया 120 और अरुण को लग रहा है 30 डेज, तो अरुण का एफिशिएंसी आ गया 4 यूनिट, भाव्य का एफिशिएंसी आ जाएगा 3 यूनिट्स और चेतन का एफिशिएंसी आ जाएगा 2 यूनिट्स. और 10 डेज के साइकिल्स हैं, 10 डेज के साइकिल्स हैं हमारे. इन 10 डेज अरुण और भाव्य कितना वर्क कर रहे हैं, कितने डेज वर्क कर रहे हैं इफेक्टिवली? देखो अरुण एंड भाव्य वर्किंग टुगेदर फॉर डे 1 and 2. तो अरुण एंड भाव्य टुगेदर कैन कंप्लीट 4 + 3 7 यूनिट्स वर्क. Arun and Chetan can complete 4 + 2 6 units work, and Bhavya and Chetan can complete 5 units work. So Arun and Bhavya are working together for 2 days. तो 2 days में वर्क करेंगे 7 × 2 14. All three are working together for 2 days. तो कितना वर्क करेंगे? 4 + 3 + 2 9 × 2 18 यूनिट्स वर्क करेंगे. देन 3 डेज के लिए भाव्य एंड चेतन आर वर्किंग. तो 1 डे में वर्क करते भाव्य एंड चेतन 5, 3 डेज में करेंगे 15. देन 8 to 10 तो 3 डेज के लिए वर्क करते हैं अरुण एंड चेतन, 1 डे में करते हैं 6, तो 18 वर्क कर लेंगे. तो 1 साइकिल में कितना वर्क कंप्लीट होगा? 14 + 18 32 47 65 यूनिट्स. तो इन फ्रॉम डेट 1 to 10 65 यूनिट्स वर्क विल बी कंप्लीटेड. और हमें टोटल वर्क चाहिए 120 चाहिए. तो जब 65 ऑलरेडी हो गया तो रिमेनिंग वर्क बचा कितना है? 55 यूनिट्स वर्क इज रिमेनिंग. ठीक है, 55 यूनिट्स वर्क इज रिमेनिंग और 10 डेज में 65 यूनिट्स वर्क कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर 10 डेज और मिल जाएंगे 20 डेज में दे विल बी कंप्लीटिंग 130 यूनिट्स वर्क. बट हमको चाहिए कितना है? वी ओनली नीड 120 यूनिट्स वर्क, यानी कि 10 यूनिट्स लेसर चाहिए. 20 डेज में दे कैन कंप्लीट 130 यूनिट्स वर्क. ओके, और लास्ट में वर्क कर रहे हैं हमारे अरुण एंड चेतन, एंड दे आर वर्किंग 6 यूनिट्स वर्क इन 1 डे. 1 डे में कर रहे हैं 6 यूनिट्स, तो 130 यूनिट्स हो गया. अगर उनका एक दिन का वर्क हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वर्क ऑफ 1 डे सब्ट्रैक्ट करते हैं अरुण और चेतन का, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा? 124. भाई डे 19 तक वर्क कितना होगा? एंड ऑफ डे 19 तक वर्क कितना होगा? एंड ऑफ डे 20 पे वर्क हो रहा है 130, एंड ऑफ डे 19 में वर्क होगा 130 - 6 यानी कि 124 यूनिट्स. 124 हमें चाहिए 120. अगर एंड ऑफ डे 18 का वर्क देखते तो और 6 सब्ट्रैक्ट करते तो वर्क होता हमारा 118 यूनिट्स. बट 120 चाहिए, यानी कि वर्क विल बी कंप्लीट ऑन डे 19. पूरा डे 19 नहीं लगेगा, डे 18 तक 118 यूनिट्स वर्क कंप्लीट हो गया. 2 यूनिट्स और करना है. टोटल कंप्लीट डे में करते हैं 6 यूनिट्स, यानी कि 118 प्लस 2 यूनिट्स वर्क चाहिए, यानी कि 1/3 डे लगेगा. तो 18 एंड 1/3 डेज विल बी द आंसर. बट एक्चुअल में आंसर में पूछा है कौन से डे पे वर्क कंप्लीट होगा? वर्क विल बी कंप्लीट ऑन द 19th डे. ऑप्शन सी. ओके, ठीक है. Neeraj has agreed to mow a lawn which is a 20 meter cross 40 meter rectangle. He mows it with a 1 meter wide strip. If Neeraj starts at one corner and mows around the lawn towards the center, about how many times would he go around before he has mowed half the lawn? Before he is able to mow half the lawn, तो कितना बार उसने राउंड कंप्लीट किए होंगे? That is the question. So dimensions are 20 × 40. So area initially is equal to 20 × 40, 800 meter square, and he has to mow half the lawn. ठीक है, करना तो पूरा ही है, बट हमें क्वेश्चन में पूछा है, हमारे कंसर्न तो हाफ द लॉन तक ही, उसके बाद में हमें कोई मतलब नहीं कितना भी करे, टाइम ले. सो ही मोज इट विद 1 meter वाइड स्ट्रिप. तो लेट अस से ही इज स्टार्टिंग एट दिस कॉर्नर. सो दिस विल बी 1 राउंड. ठीक है, आफ्टर 1 राउंड क्या होगा? आफ्टर फर्स्ट राउंड डायमेंशंस क्या बचेंगे? ही हैज ऑलरेडी मोड 1 मीटर ऑन ऑल साइड्स. सो रिमेनिंग डायमेंशंस क्या बचेंगे? रिमेनिंग डायमेंशंस बचेंगे हमारे 20 - 2, यानी कि दिस विल बी 18.
40 minus 2, so this will be 38. So after first round, remaining area will be 18 into 38. ठीक है, 18 into 38, which will be equal to 760 minus 76. तो 700 minus 16, 684 मीटर स्क्वायर. अभी तो ग्रेटर देन 400 है. आफ्टर सेकेंड राउंड सिचुएशन क्या होगा? डायमेंशंस विल बी 18 में 2 और कम हो जाएगा, 16 इंटू 36 हो जाएगा. तो 36 इंटू 15 दैट इज 360 प्लस 180, 540 प्लस 36, 576 मीटर स्क्वायर. आफ्टर थर्ड राउंड this will be 14 into 34, so 340 plus 136, 476 मीटर स्क्वायर. ठीक है, 476 मीटर स्क्वायर. आफ्टर फोर्थ राउंड बेसिकली हम जब क्वेश्चन करेंगे तो फर्स्ट 2 राउंड्स में तो चेक ही नहीं करना है, थर्ड राउंड के बाद ही चेक करेंगे स्ट्रेट अवे, क्योंकि ऑप्शन से भी दिख रहा है कि फर्स्ट 2 राउंड्स में तो कंप्लीट नहीं होने वाला होता तो आंसर दिख जाता. फोर्थ राउंड के बाद में क्या बचेगा? 12 इंटू 32, दिस विल बी 320 प्लस 64, 384 मीटर स्क्वायर. सो नाउ दिस इज लेस देन 400 मीटर स्क्वायर. तो 4 राउंड से कम राउंड में काम होगा, आंसर होगा. तो ऑप्शन ए आंसर नहीं है, ऑप्शन डी आंसर नहीं है, ऑप्शन बी भी आंसर नहीं होगा, बिकॉज 476 हमारा हो रहा है थर्ड राउंड के बाद में और 384 हो रहा है आफ्टर द कंप्लीटिंग द फोर्थ राउंड. तो 3.5 एक्जैक्टली हाफ पे तो काम नहीं होगा, काम बनेगा हमारा ऑप्शन सी 3.8 में. ऑप्शन सी विल बी द आंसर, बिकॉज टोटल हमारा कितना डिफरेंस आ रहा है 1 राउंड में? टोटल डिफरेंस आ रहा है हमारा अराउंड 100 का, और 75 कम करना है आपको, तो अराउंड 3.8 के आसपास का वैल्यू आ जाएगा. बिकॉज एज सच 100 का भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, 100 डिफरेंस हमारा आ रहा है 76 प्लस 16, तो दैट इज डिफरेंस ऑफ 92, और हमें कम करना है 76, तो 76 बाय 92 विल ऑलमोस्ट बी 0.8. ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द आंसर. क्या ये क्लियर है? ओके. Next question. There are 4 physics and 5 chemistry books. Find the probability such that physics and chemistry books are arranged alternatively. So हमें क्या करना है? फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक्स को अल्टरनेटिवली अरेंज करना है. 4 बुक्स है फिजिक्स की, 5 बुक्स है केमिस्ट्री की, और प्रोबेबिलिटी चाहिए. टोटल आउटकम्स क्या होंगे? अगर मैं कोई कंडीशन गिवन नहीं होता, टोटल केसेस क्या बनेंगे? टोटल केसेस क्या बनेंगे? 9 बुक्स है इन टोटल, सबको अरेंज करना है, 9 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे टोटल. But with conditions 4 physics और 5 chemistry books हैं and we have to arrange these books alternatively. ठीक है, अब 4 बुक्स है फिजिक्स की. अगर तुमने पहले फिजिक्स की बुक्स को अरेंज कर दिया, अब केमिस्ट्री बुक्स को अरेंज करना है. 5 बुक्स हैं, 5 प्लेसेस चाहिए तुमको, और एग्जैक्टली 5 प्लेसेस ही अवेलेबल है. अब 5 प्लेसेस पे तुम्हें फिट करना है, तो केमिस्ट्री की बुक्स आ जाएंगी. सो फिजिक्स की बुक्स अरेंज करने के तरीके आ जाएंगे 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. अगर 4 फिजिक्स और 4 केमिस्ट्री की बुक्स होती, इन दैट केस अगर हमारे पास 4 फिजिक्स की बुक्स होती और 4 ही केमिस्ट्री की बुक्स होती, तब प्लेसेस तो हमारे पास 5 हैं, बट हमारे पास बुक्स सिर्फ 4 होती है उस केस में. और अगर बुक्स 4 होती तो हमें ये तो क्लियर था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक्स अल्टरनेटिवली अरेंज करनी है, तो बीच के प्लेसेस तो फिक्स है, यहां पे तो हमें केमिस्ट्री की बुक्स रखनी पड़ेगी. बट अपार्ट फ्रॉम दीज इन दोनों में से कोई एक प्लेस सेलेक्ट कर लेते हैं. तो एक्चुअल वेज हमारे हो जाते हैं उस केस में 4 फैक्टोरियल इंटू 2c1 इंटू 4 फैक्टोरियल. तो दिस वुड हैव बीन नंबर ऑफ वेज इफ, ये तब होता इफ 4 केमिस्ट्री एंड 4 फिजिक्स बुक्स होती. इस क्वेश्चन में तो आंसर है 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. दीज आर फेवरेबल केसेस, desired cases. So probability will be equal to 4 factorial into 5 factorial divided by 9 factorial. So this will be 24 divided by 6 into 7 into 8 into 9. 1 by 126 will be the answer. Option D आंसर हो जाएगा. Clear? Okay. Option D will be the answer. Next question. Length, breadth and height of a room are in the ratio 3:2:1. If breadth and height are halved while the length is doubled, total area of the 4 walls of the room क्या होगा? Total area of the 4 walls. और total area of 4 walls होता क्या है? This is perimeter into height. So initially length, breadth and height का ratio है 3:2:1. 3, 2 और 1 ही मान लेते हैं. Initially 3 to 1 है, तो हमारा क्या आ जाएगा? Total area of walls
perimeter, which will be 2 times of length plus breadth. So 2 times 3 plus 2 into height. So 2 into 6 which is equal to 12. अच्छा, एक चीज और रखना, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक बार कभी कभी आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी हो सकता है ऐसे केसेस में, तो ऑप्शन में देख लेना, ऑप्शन में अगर कहीं पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड लिखा है तो तुम 3 2 1 मानने के बजाय 3x 2x और x एज्यूम करोगे और फिर लास्ट में देखोगे कि x कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है तुम्हारा। ठीक है, अगर x कैंसिल हो जा रहा है तब तो आंसर हम डिटरमाइन कर पाएंगे, अदरवाइज डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। बट अगर ऑप्शन में कभी कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं गिवन है तो फिर स्ट्रेट अवे वैल्यूज एज्यूम कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर तो आंसर अपना निकल ही आएगा और हर केस में यूनिक ही आएगा। ठीक है, तो वहां पे फिर टेंशन लेने की तुमको जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे वैल्यूज एज्यूम करो। ओके, अब नेक्स्ट केस में क्या कर रहा है, ब्रेड्थ और हाइट को हम हाफ कर रहे हैं, तो ब्रेड्थ हमारा हो जाएगा 1, हाइट भी हो जाएगी 0.5 और लेंथ हो जाएगा हमारा डबल, लेंथ हो जाएगा 6। सो नाउ द एरिया विल बी 2 टाइम्स ऑफ 6 + 1 इंटू 0.5। ओके, एक सेकेंड, क्वेश्चन कह रहा है लेंथ ब्रेड्थ हाइट का रेशियो है 3:1, ब्रेड्थ एंड हाइट आर हाफ्ड। ठीक है, ब्रेड्थ को हाफ कर दिया, हाइट को हाफ कर दिया, एंड लेंथ इज डबल्ड, लेंथ को कर दिया 6। सो नाउ दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ 6 + 1 इंटू 0.5, तो दिस विल बी 7। ऊपर 10 आया था, 12 नहीं था। सो 10 से नाउ दिस इज 7, तो इज द रिडक्शन ऑफ 3 ऑन द बेस 10, 30% रिडक्शन है, ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके, और अगर यहाँ पे x माना भी होता तो x² दोनों केस में आता, तो x² अल्टीमेटली कैंसिल होना था रेशियो में। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, और क्या इक्वेशन गिवन है, x + 1 टू द पावर log of x + 1 ऑन द बेस 10। log of x + 1 on the base 10 and that is equal to 100 into x + 1। अब हर जगह में x + 1 ही दिख रहा है, x तो दिख नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे x + 1 को कोई और वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, x + 1 को एज्यूम कर सकते हैं कोई वैल्यू। ओके, मान लिया हमने x + 1 इज इक्वल टू y, सो दिस बिकम्स y टू द पावर log of y ऑन द बेस 10 एंड दैट इज इक्वल टू 100 into y। बट क्या अभी हमारे लिए चीजें आसान हुई? बिल्कुल भी आसान नहीं हुई। अभी भी हमें इस क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। एक गलती जो कर सकते हो, जो करनी नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, वो क्या है कि इफ वी हैव बीन गिवन दैट a टू द पावर log of b on the base a, then this is always equal to b. a to the power log of b on the base a, then this is equal to b. But अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, a to the power log of a on the base b, so this is not equal to, ना तो a equal to a होगा, ना ही equal to b होगा। ठीक है, ना तो equal to a होगा, ना तो equal to b होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गलती से इसको a equal to y या equal to 10 नहीं कर देना है, ऐसी गलती नहीं करनी है, बिकॉज these two are not equal। ठीक है, क्लियर है? और यहाँ पे हमारा अगर ऐसा केस होता तब तो डेफिनेटली बी हो जाता। ओके, बट यहाँ पे नहीं होगा। क्या करेंगे फिर, अब लॉग में ऊपर जो पावर आ रहा है उसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए फिर से एक बार लॉग ले लो, फिर से एक बार लॉग ले लो, तो लॉग हमारा पावर से हट के आ जाएगा बाहर। ठीक है, सो लॉग ले लो फिर से एक बार इसमें। सो पूरे वैल्यू पे दो साइड्स में लॉग ले लोगे, सो लॉग ऑन द बेस 10 ही लो, लॉग ऑन द बेस 10 ऑफ y टू द पावर log of y ऑन द बेस 10, दिस इज इक्वल टू log ऑफ 100y ऑन द बेस 10। So now this is the power, पावर को ले आओ बाहर। So log of y on the base 10 multiplied by log of y on the base 10, this is equal to, अब now this is log of a into b, तो log a plus log b कर लो। So this will be equal to log of 100 on the base 10 plus log of y on the base 10। Now log of y on the base 10, इसको तुम कोई वैल्यू एज्यूम कर लो। ठीक है, बेसिकली log of y क्या है, y हमारा x + 1 था, तो log of x + 1 on the base 10, let us say this is equal to t, so this becomes t into t, t square, which is equal to log of 100 on the base 10, which is 2, so t square is equal to 2 plus t। सिंपल क्वाड्रेटिक बन गया, t square is equal to 2 plus t। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो t square is equal to 2 plus t आ गया, t square minus t minus 2 is equal to 0, so t square minus 2t plus t minus 2, this is equal to 0, so t plus 1 into t minus 2, this is equal to 0, तो यहाँ से t के दो वैल्यूज आएंगी, -1 और 2। अब हमें चेकआउट करना है, वैल्यूज तो दो आई हैं बट आंसर 2 मार्क नहीं करना है, पहले चेक करना है क्या ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं, डोमेन को लाई करेंगे या नहीं लाई करेंगे। ठीक है, तो t हमारा है -1 and 2, बट सिंस t हमारा है log of x + 1 on the base 10, so log of x + 1 on the base 10, this is equal to -1 और 2। बट सिंस हमने x + 1 को ही अपना सारी जगह पे x + 1 ही है, कहीं पे भी x तो है नहीं, तो अगर x हमारा निगेटिव भी आ जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, x अगर नेगेटिव पे जाता है एज लॉन्ग एज x आवर वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन -1 तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, सो 10 टू द पावर -1 इज इक्वल टू x प्लस 1, यानी कि x प्लस 1 कैन बी इक्वल टू 1/10 फर्स्ट केस में, या सेकंड केस में आएगा 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू x प्लस 1, यानी x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 100। सो x विल बी इक्वल टू -9/10 और x विल बी इक्वल टू 99। बट हमारा कंसर्न x से नहीं है, डोमेन के लिए, बिकॉज सब जगह पे x प्लस 1 है और x प्लस 1 हमारा 1/10 आ रहा है और 100 आ रहा है, तो इन बोथ केसेस इट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशंस, हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो 2 सॉल्यूशंस आ जाएंगे, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द आंसर, देयर विल बी 2 सॉल्यूशंस, 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस। ओके, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a 4-digit number is chosen randomly, what is the probability that the sum of the digits of the chosen number is equal to 5? There is a 4-digit number and question is asking ki what is the probability that the sum of the digits of the chosen number is equal to 5? Sum of the digits of the chosen number, this is equal to 5. Now खतरनाक सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, बट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। Sum of the digits of the chosen number is equal to 5. Now let us say that number is equal to a, b, c, d. ठीक है, अगर क्वेश्चन में एक कंडीशन होता है कि नो डिजिट्स इज इक्वल टू 0, तब तो चीजें आसान होती, बिकॉज 4 डिजिट नंबर है, सम आ रहा है 5, अगर कोई भी डिजिट हमारी 0 नहीं हो तो कैसे बन सकता था ये? तब तो सिर्फ एक ही तरीका होता भाई, 1 + 1 + 1 + 2। इफ नो डिजिट वॉज इक्वल टू 0, तब तो यही एक केस पॉसिबल था। ठीक है, इफ none was 0, if 0 was not allowed, बट ऐसा तो नहीं है, 0 is allowed, 0 is allowed, तो जब 0 आएगा तो फिर यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा उसके बाद में। ठीक है, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होगा उसकी वजह से। ठीक है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? एक तो हो गया कि फिर हम उसके बाद में एजम्पशन करें कि यहां पे कितने केसेस बनेंगे जबकि 0 इज नॉट अलाउड, टोटल केसेस कितने बनेंगे? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, सो 4 सच नंबर्स विल बी देयर। अब इसके बाद में केस लो कि 1 0 इज देयर, 1 0 है, एक 0 अलाउड है, सो एक कोई 0 हो गया, बाकी सबका सम क्या आ जाएगा? हमारा 5 आना चाहिए, तो एक 0 हो गया, अब बाकी 3 का सम तुम्हें चाहिए 5, तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं? 1 1 and 3 हो सकता है, या 1 2 2 हो सकता है, और तो कोई केस बनेगा नहीं, 1 1 3 एंड 1 2 2। ठीक है, फिर देखो कि 2 zeros वाला केस देखो, अगर दो डिजिट्स हमारे जीरोस हैं तो बची हुई 2 डिजिट का सम आना चाहिए 5, यानी कि दिस विल बी 1 4 या फिर 2 3 होंगे, या फिर केस बन सकता है 3 zeros हो, अगर 3 zeros है तो फिर 5 ही बचा, एक ही डिजिट बचा है तो वो 5 होगा। अब इन सारे के सारे केसेस में नंबर कितने बनने वाले हैं वो कैलकुलेट कर लो, कितने नंबर्स बनेंगे हर एक केस में, उनको सेपरेटली कैलकुलेट कर लो। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, अगर 1 0 है तो हमारा बची हुई डिजिट्स 1 1 3 होगा या 1 2 2 होगा। अब अगर डिजिट्स है हमारी 1 1 3 एंड 0 0 1 1 3, तो कितने 4 डिजिट नंबर्स बनेंगे भाई? अगर हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है तो फर्स्ट प्लेस पे तो हम 0 नहीं ला सकते, तो फर्स्ट प्लेस पे अगर 1 आएगा तो फिर 3 डिजिट्स बन गई, उसके बाद में कुछ भी किसी तरह से आ जाए, तो फर्स्ट प्लेस पे 1 आ गया तो डिजिट्स बची हमारी 1 3 एंड 0। सो अरेंज करने के तरीके हो जाएंगे हमारे पास 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6 नंबर्स बनेंगे। अगर फर्स्ट प्लेस पे हम 3 को ले आए, सो डिजिट्स बचेंगे हमारे पास 1 1 0, तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, बिकॉज 2 1s आर देयर, 3 नंबर्स बनेंगे इस केस में। ठीक है, सेकंड केस 1 2 2, यहां भी यही सेम स्टोरी होगी, 0 1 2 2, और सेम लॉजिक से यहां भी नंबर्स बनाओगे तो तुम्हारे 9 नंबर्स बनेंगे, क्योंकि ये 2 2 बार आ रहा है। ठीक है, पीछे वाले केस में 1 2 बार आ रहा था, तो यहां भी 9 नंबर्स बनेंगे। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? आर यू एबल टू अप्लाई दिस लॉजिक? ठीक है, 9 नंबर्स इन द फर्स्ट केस, 9 इन द सेकंड केस। नाउ बात करो 1 4 0 0 की, तो 0 0 1 4। नाउ फर्स्ट प्लेस पे वी कैन नॉट हैव 0, तो फर्स्ट प्लेस पे वी कैन हैव 1 और 4। फर्स्ट प्लेस पे तुमने 1 ले आए, सो नंबर्स बचेंगे हमारे पास 0 4 एंड 0 0 4 0। सो नंबर ऑफ नंबर्स आ जाएंगे हमारे 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल विच विल बी इक्वल टू 3 नंबर्स। और बाय द सेम लॉजिक इफ वी हैव 4 इन द फर्स्ट प्लेस, देन ऑल्सो विल बी हैविंग 3 नंबर्स, बिकॉज बचेगा हमारे पास 0 1 0। ठीक है, 3 नंबर्स बनेंगे इस केस में भी। अब 23 अगेन सेम बात है, तो यहां भी हमारे पास 23 में भी टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे? 3 + 3 6 हो जाएंगे, 6 नंबर्स। क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? लास्ट केस बचा व्हेन देयर इज अ 5,
नाउ सिंस इन द 1000 डिजिट वी कैन नॉट हैव जीरो, तो एक ही नंबर बनने वाला है 5000 विच इज ओनली वन नंबर. टोटल नंबर्स कितने हुए हमारे? 4 इन दिस केस व्हेन देयर वाज नो जीरो. तो 4 प्लस 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 9 18 for 1 0, then 6 plus 6 12 for 2 zeros, and last 1 when there are 3 zeros. टोटल नंबर्स बने हमारे पास 30 प्लस 5 35 काम के नंबर्स बने. और 4 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं हमारे? टोटल नंबर 4 डिजिट नंबर्स इज 9000. बाई 1000 प्लेस पे वी कैन नॉट हैव जीरो, तो 9 ऑप्शंस, बाकी प्लेसेस पे 10 ऑप्शंस. 9 इंटू 10 इंटू 10 9000. तो 35 by 9000 विल बी द आंसर, which will be 7 by 1800. 7 by 1800, option D. Now definitely this method of calculation is slightly cumbersome and very time taking, और गलती होने का भी स्कोप है, कुछ भूल भी सकते हो, कुछ गलती भी कर सकते हो. बेटर अप्रोच क्या होगा ऐसे केस में कि इफ 4 डिजिट्स आर ABCD, एग्जाम में तो देखो स्नैप में आ जाएगा तो फिर तो स्किप मार देना, इसको करोगे तो लास्ट में करोगे, अदरवाइज बिल्कुल नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, बिकॉज दिस विल ऑलवेज बी टेकिंग टाइम, और समझना भी पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा, एग्जाम में समय खाएगा, तो बाद में ही कर सकते हो इसको या फिर स्किप कर दोगे. ठीक है, बट समझ तो आना चाहिए कि अगर कोई शॉर्टर वर्जन आए तो हम कर सकें. अब देखो सेकंड अप्रोच ये हो सकता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द चोजन नंबर इज इक्वल टू 5, यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी दिस इज इक्वल टू 5. तो इसका जो सॉल्यूशन निकाल लो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 5, और ABCD में से कोई वैल्यू जीरो भी हो सकता है, क्योंकि जीरो भी हमें अलाउ करना पड़ेगा. ठीक है, बस हमें ये कंडीशन पता है कि a जीरो नहीं होना चाहिए, बट अभी तो हम a को इक्वल टू नॉट जीरो के बारे में इनिशियली नहीं सोच सकते. ठीक है, a को जीरो नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? बाकी सब कुछ चलेगा. क्या ये क्लियर है? ओके, इज दिस क्लियर? तो क्या कर सकते हो, सॉल्यूशंस निकाल लो. कितने सॉल्यूशन आएंगे हमारे? सो देयर आर 4 नंबर्स एज सच, तो तुम 3 ब्रेकर्स लगाओगे, 5 वंस आ जाएंगे, 3 ब्रेकर्स विल बी देयर. ठीक है, और कहीं पे भी आ सकते हैं. टोटल अरेंज करना है इन सबको, तो नंबर ऑफ फेजेस ऑफ अरेंजमेंट आ जाएंगे 8C3. या बेसिकली दिस विल बी, दिस इज इक्वल टू n, सम इज इक्वल टू n. ठीक है, और कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है? r पार्ट्स में, r पार्ट्स यानी 4 पार्ट्स, r इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5. तो n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, सो दैट विल बी 5 प्लस 4 माइनस 1, यानी कि 8C3. 8C3 विल बी नंबर ऑफ वेज, कितना आएगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 बाई 6, तो टोटल विल बी 56. बट इनमें से कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे कि a इक्वल टू 0 आ गया होगा, उनको रिमूव करना पड़ेगा. अब a इक्वल टू 0 वाले केसेस को रिमूव कर दो. सो इफ a इज इक्वल टू 0 आ गया होगा, सो इन दैट केस b प्लस सी प्लस डी विल बी इक्वल टू 5. सो इसके सॉल्यूशन निकाल के रिमूव कर देंगे हम. ठीक है, यहां पे कितने सॉल्यूशंस आएंगे हमारे? n इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 3. सो दिस विल बी 5 plus 3 minus 1, so that will be 7C2, so which is equal to 21. तो 56 minus 21 will be अपने काम के नंबर्स, टोटल है 9000, तो आंसर आ जाएगा 35 by 9000, which is 7 by 1800, ऑप्शन डी. क्या ये मेथड क्लियर है? बिकॉज दिस मेथड इज फार मोर इजियर देन द प्रीवियस वन. इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके. Isn't it so? अब देखो हमारा कंडीशन क्या था कि a शुड नॉट हैव बीन इक्वल टू 0. ठीक है, तो हम यहां पे डायरेक्टली ये भी सोच सकते थे, सिंस a हैज नॉट, a कैन नॉट बी अलाउड इक्वल टू 0, तो हम a को रिप्लेस कर देते किसी और वैल्यू से. लेट अस से a को हम मान लेते इक्वल टू 1 प्लस एक्स, बिकॉज मिनिमम वैल्यू भी a की हम 1 ले सकते हैं. ठीक है, तो x हमारा 0 हो सकता है. अब जब हम a को 1 प्लस एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो नाउ a का मिनिमम वैल्यू हमें 0 मिल जाएगा. ठीक है, सॉरी, a का मिनिमम वैल्यू हमें 1 ही मिलेगा, बिकॉज x हमारा 0 अलाउ कर सकते हैं हम. ठीक है, रिप्लेस कर दो यहाँ पे a इक्वल 1 प्लस एक्स.
तो जैसे ही a को 1 प्लस एक्स रखोगे, ध्यान से समझना a को 1 प्लस एक्स हम क्यों रख रहे हैं, बिकॉज नाउ इन दिस केस इवन इफ x इज इक्वल टू 0, सो a हमारा इक्वल टू 1 होगा उस केस में भी, x 0 होगा चलेगा, ठीक है। तो x को 0 रख सकते हैं, बट a हमारा कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे ही रिप्लेस करोगे, दिस विल बिकम 1 प्लस एक्स प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दिस इज इक्वल टू 5, तो x प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दिस इज इक्वल टू 4। बाकी प्रोसेस सेम है। नाउ n हमारा इक्वल टू 4 हो गया है, r इज इक्वल टू 3, तो सॉल्यूशन आ जाएगा हमारा 4 प्लस 3 माइनस 1, यानी कि 7 माइनस 1 c 3 माइनस 1। ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? एक सेकंड, r इक्वल टू 4 है यहाँ पे, पीछे गड़बड़ किया है क्या हमने? हाँ, r इक्वल टू 4 ही लिया था, ठीक है। सो r इक्वल टू 4 है, तो दिस विल बी 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 क्यों करेंगे, 8 माइनस 1 यानी 7 c3 हो जाएगा, ठीक है। 7 c3, 8 माइनस 1 c 4 माइनस 1, so that is 7 c3 which will be 7 into 5 which is 35, डायरेक्टली हमें 35 मिल जाएगा। बट क्यों किया, कैसे किया, ये जरूर समझ में आना चाहिए कि क्यों हमने रिप्लेस किया है। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर कंफ्यूजन होता है तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। ओके, सो दीज ऑल द क्वेश्चंस इन दिस सेशन। आई बिलीव जो भी डिस्कस किया वो समझ में आया होगा और सेशन में मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और जो चीज़ें सीखी हुई हैं हमारी ऑलरेडी वो रिवाइज भी हो गई होंगी। इतना ही रखते हैं सेशन में, एंड आई मेक श्योर टू गिव यू फीडबैक इन द कमेंट्स कि सेशन कैसा लगा, और कहीं पे कोई डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में तो ऑल्सो कमेंट अबाउट दैट डाउट। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।